Good morning, students. Happy New Year to you all. Hope you had a great New Year. If you are getting my voice, just raise your hand. If you are getting my voice, just raise your hand. Thank you. Thank you for your response. Hands down. Thank you, everyone. Today we are going to start with the new chapter, Be a Sport, Gilli Danda. Gilli Danda is a street game. Street game जो गलियों में खेला जाता है. Street is a गली, तो गलियों में खेलने वाला गेम है. Played in rural areas and small towns all over the South Asia, Cambodia, Turkey and Italy. साउथ एशिया, कंबोडिया, टर्की, इटली में भी खेला जाता है. हमारे देश के अलावा हमारे देश में रूरल एरियाज में गांव की तरफ बहुत ज्यादा खेला जाता है. The game is played with two sticks, a large one called danda, which is used to hit a smaller one, the gilli. This is a short story. This short story is adapted from the story by the famous Indian author Premchand. Now, this story has been taken from the Premchand's short stories, and he has explained some of the very fundamental rural moral value which we, the urban areas and the city people, have forgotten. We will see what that particular moral value is and what this chapter is all about, right? So we are going to start with this chapter. So the game is played with the two stick. The longer one is known as danda and the smaller one is known as gilli. So what you do is basically you hit a gilli with the danda, and the other teammates, one person is doing the batting and every other person is bowling, right, or fielding. One is bowling of course and every other person is fielding. So जैसे ही गिल्ली पे आप एक साइड पे मार के उसको हवा में उछालते हैं और डंडे से उसको मारते हैं, तो जो जितने भी फील्डर्स खड़े हुए होते हैं उसको पकड़ना होता है. अगर फील्डर्स नहीं पकड़ पाते तो आपकी चांस चलती रहती है. अगर आपके फील्डर्स पकड़ लेते हैं तो आप आउट हो जाते हैं और दूसरे की टर्न आ जाती है खेलने की, right? So this is the way you play gilli danda. Now, having said that, now we are going to see what this chapter is all about. I consider gilli danda the king of all sports. Even now, when I see boys playing gilli danda, when I say boys playing gilli danda, I had a great desire to join them. मैं गिल्ली डंडा को, now मैं means author. Author is Premchand. Now Premchand is saying, whenever I say people playing gilli danda, I feel like to play gilli danda again. Desire means इच्छा होना, ठीक है? So even now जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं भी इनके संग गिल्ली डंडा खेलूं. You don't need a lawn, a coat, a net or any other expensive equipment. Just climb a tree, cut a branch, make a gilli, and even if there are only two of you, you can start playing. So बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड या लॉन की जरूरत नहीं है, ना नेट की जरूरत है, ना कोई भी एक्सपेंसिव महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत है. आपको सिर्फ पेड़ पे चढ़ना है, एक टहनी काटनी है, टहनी में से एक बड़ा हिस्सा निकाल के उसको डंडा बना लेना है और छोटे हिस्से को गिल्ली बनाना है. And even if there are only two members, you can start playing with this game. So as a boy, I spent many happy and absorbing hours playing this game. Among my fellow players was a boy named Gaya. He was tall and thin with the long supple fingers of a monkey and with a monkey's nimbleness and an uncertain temper. तो जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत घंटे इस गिल्ली डंडा के खेल में लगाए हैं, और जो ये मैंने घंटे लगाए हैं मुझे पता ही नहीं लगता था कि मैंने कितना टाइम लगा दिया. और जिनके संग मैं खेलता था उनमें से एक लड़का था जिसका नाम गया था, जो लंबा पतला था और उसकी जो फिंगर्स थी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, बहुत ही ज्यादा ऐसी थी कि मंकीज की जैसी फिंगर्स होती है ना, निम्बलनेस होती है उनमें, उस तरीके की फिंगर्स थी. एंड पर उसका टेम्पर बहुत अनसर्टेन था, यानी उसका गुस्सा कभी भी आ सकता था उसको. Whatever the shape of the gilli, he would pounce on it the way the lizard pounces on it. जैसे आपने देखा है कि छिपकली किस तरीके से
कीड़े पे झपटती है, उसी तरीके से ये गया जो है वो गिल्ली पे झपटता था। ठीक है, सो आई डिडंट नो वेयर गया लिव्ड और हाउ ही लिव्ड और हाउ हु हिज पेरेंट्स वर, बट ही वाज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ आवर गिल्ली क्लब। लेखक आगे कहता है कि मेरे को नहीं पता गया कहाँ रहता था, कौन उसके पेरेंट्स थे, लेकिन वो हमारे गिल्ली क्लब का बिल्कुल मतलब अनडिस्प्यूटेड मींस इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो हमारे गिल्ली क्लब का चैंपियन था। whichever side he played was bound to win, जिस भी साइड से वो खेले वो साइड तो पक्का ही जीतने वाली थी। One day only Gaya and I were playing. He was batting, I was fielding. एक दिन मैं और गया ही केवल खेल रहे थे, वो बैटिंग कर रहा था और मैं फील्डिंग कर रहा था। It was strange that one could spend the whole day batting, but even a minute of fielding seemed irksome. ये बहुत ही अजीब बात है कि इट इज स्ट्रेंज दैट पूरा दिन भर आप बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फील्डिंग करनी पड़े तो आपको एक एक सेकंड जो है वो इरिटेटिंग लगता है, एनोइंग लगता है, मतलब इरिटेशन होती रहती है। आई ट्राइड ऑल मीन्स इंक्लूडिंग द फाउल वंस, मैंने सारे तरीके अपनाए। फाउल वंस मतलब जो गलत थे, ठीक है, फाउल इज गलत, सड़ा हुआ, खराब, गलत तरीके थे। which at such time seems permissible to put an end to my fielding, जो इस समय, क्योंकि दो ही जन खेल रहे थे तो अगर एक जन बोलेगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो तो दूसरा तो कोई देखने वाला है ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहा और तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस तरीके से मैंने सारे वो हथकंडे अपना लिए थे, सारे वो तरीके अपना लिए थे गलत वाले भी, जिससे कि मैं अपनी फील्डिंग को खत्म कर सकूं। बट गया वुड नॉट लेट मी गो अंटिल आई हैड गॉट हिम आउट, और गया जो है वो आउट ही नहीं हो रहा था और वो मुझे जाने भी नहीं दे रहा था कि जब तक कि मैं उसे आउट नहीं कर दूं। When all my attempts to wriggle out of fielding failed, I tried to run home. Gaya caught hold of me and said fiercely, "Let me complete my turn before you go. You batted with a great gusto. Now it's your turn to field. Why are you running away?" गया से अब मैंने सारे तो सब चीज तो करके देख ली कि किसी तरीके से गया आउट हो जाए, लेकिन वो आउट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं घर भाग जाता हूँ, लेकिन गया ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया और मेरे को गुस्से से बोला कि जब तक मेरी बारी खत्म नहीं हो जाती तुम घर नहीं जा सकते। जब तुम्हारी अपनी बारी थी तब तो तुमने बड़े मजे से पूरी एनर्जी से मजे से पूरी बैटिंग करी, और जब मेरी बारी आ रही है तो तुम घर भाग रहे हो। इफ यू बैट होल डे डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो ऑन फील्डिंग द होल डे। अब लेखक कहता है कि अगर तुम पूरे दिन भर बैटिंग करते रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं पूरे दिन भर फील्डिंग करता रहूं? यस आई डू, गया जवाब देता है, बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ। कांट आई इवन गो होम टू ईट और ड्रिंक। लेखक आगे कहता है कि क्या मैं खाने पीने के लिए भी घर नहीं जा सकता? नो नॉट टिल माई टर्न इज ओवर, गया जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, जब तक कि मेरी टर्न ओवर नहीं हो जाती। आई एम गोइंग होम, लेट्स सी हाउ यू स्टॉप मी। लेखक कहता है मैं घर जा रहा हूँ, देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोक लेते हो। हाउ विल यू गो होम, गया को भी गुस्सा आ जाती है, वो भी कहता है कि तुम कैसे घर जा सकते हो। नॉर्मल सी लड़ाई है जो बचपन में खेलते वक्त होती है। डू यू थिंक दिस इज अ जोक? आई गेव यू योर टर्न, नाउ आई विल टेक माइन। गया आगे कहता है कि तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है, मैंने तुम्हारी टर्न दी थी, अब मेरी टर्न है, तुम पूरी मेरी टर्न लेके जाओ। ऑल राइट, यस्टरडे आई गेव यू द गुआवा, गिव इट बैक टू मी। लेखक कहता है ठीक है, मैंने तुमको कल अमरूद दिया था, तुम मेरा अमरूद मुझे वापस करो। ओके, सो ये नॉर्मल सी बातें हैं जो बच्चों में आपस में होती रहती है। इट हैज गॉन इनटू माय स्टमक, गया कहता है वो तो मेरे पेट में गया। टेक इट आउट देन, व्हाई डिड यू ईट माय गुआवा? लेखक कहता है मेरा अमरूद वापस करो, अगर तुम्हारे पेट में गया तो भी निकाल के मेरा अमरूद मुझे वापस करो, तुमने क्यों खाया? यू कांट हैव योर टर्न टिल यू रिटर्न माय गुआवा, मैं तुम्हारी टर्न तब तक नहीं दूंगा जब तक कि तुम मेरा अमरूद वापस नहीं करते। I tried to free myself from the Gaya's grasp, but he held on to me. मैंने अपने आप को गया के पंजे से छुड़ाने की, गया के पकड़ से, ग्रास्प यानी पकड़, पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पाया। I shouted at him, मैं उसके ऊपर चिल्लाया। He shouted at me in turn. He hit me with his danda and I hollered.
मैं उसके ऊपर चिल्लाया, वो मेरे ऊपर चिल्लाया और उसने मेरे को डंडे से मारा और मेरी चीख निकल गई। गया कुड नॉट मैच दिस वेपन ऑफ माइन। गया मेरे इस हथियार का मुकाबला नहीं कर पाया। किस हथियार का? चीखने का। He took to his heels. I promptly wiped my eyes, forgot the blow I had received and ran home laughing. और जैसे ही गया ने डंडा मुझे मारा और मैं चीखा, ठीक है, आपस में चिल्लाने के बाद लेखक जैसे ही चीखा तो गया जो है वो भागा। कहाँ भागा पता नहीं, ठीक है, लेकिन लेखक जो था वो उठा, उसने अपनी आंखें पोंछी और डंडा वंडा जो उसको पड़ा था वो तो वो भूल भाल गया और वो भी भागा हंसते हुए अपने घर की तरफ। Soon after this incident, my father was transferred to another town. In the excitement of going to new place, I quite forgot my old playmates. इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद मेरे फादर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और उसकी एक्साइटमेंट में मैं अपने सारे साथियों को भूल गया। 20 years went by and I qualified as an engineer. 20 साल हो गए इस बात को और अब मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ। While touring the district, I arrived by chance at the same small town that I had lived in as a child. I stayed in the डाक बंगलो। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, वो लोग डाक बंगलों में जाके रहते हैं। सर्किट हाउस, ये नाम आप लोगों ने सुने हुए होंगे, है ना। तो अब ये जो लेखक है ये बड़ा हो चुका है, इंजीनियर बन चुका है और वो अपने टूर करते करते उसी डिस्ट्रिक्ट में आ गया जहां पर वो कभी बचपन में रहा करता था। और वो जाके अब की बार, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी था तो वो जाके कहाँ रहा था? बंगलों में रहा। Eager to bring back the old memories, I went out for a walk, but was really disappointed. अब उसको अपने बचपन की सारी चीजें तो याद थी, तो वो अपनी यादों को ताजा करने के लिए डाक बंगलों से बाहर निकला और उसको बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। हाउ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्डहुड हैड चेंज। मेरी खूबसूरत बचपन की दुनिया किस तरीके से बदल चुकी थी। सडनली आई सॉ 2 or 3 boys playing गिल्ली डंडा in an open space nearby. Suddenly मैंने देखा कि 2-3 लड़के गिल्ली डंडा जो है वो खेल रहे थे ओपन से स्पेस में। For a second I completely forgot myself. एक सेकंड के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया। I went up to one of the boys and said, "Tell me, does a man named Gaya live here somewhere?" मैं उन दोनों लड़कों के पास गया और मैंने वहां पे जाके एक लड़की को पूछा कि यहाँ पे गया नाम का कोई आदमी रहता है? You mean गया द ग्रूम? उस लड़के ने asked the boy timidly. उस लड़के ने धीरे से, timidly यानी डरते हुए, धीरे से बोला, वो गया जो ग्रूमिंग करता है। ग्रूमिंग करते हैं किसकी? घोड़ों की, ठीक है। सो वो गया जो घोड़ों की देखभाल करता है। Yes, I think so, I replied. Can you call him for a minute? लेखक कहता है हाँ शायद, क्या तुम उसको 1 मिनट के लिए बुला सकते हो? The boy ran off and reappeared in a few minutes with a short dark man. वो लड़का भागता हुआ कहीं चला गया और वापस आया तो उसके साथ एक छोटा सा काला सा आदमी, डार्क मैन, वापस आया। I recognized my old playmate straight away and wanted to fling my arms around him, but I stopped myself. मैंने गया को तुरंत ही, अपने बचपन के साथी को तुरंत ही पहचान लिया और मेरा मन हुआ कि मैं उससे गले लग जाऊं। Fling my arms around him यानी गले लगना, मैं उसके गले लग जाऊं, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। Well, गया, I said coolly, do you recognize me? लेखक गया से पूछ रहा है कि अरे गया, तुमने मुझे पहचाना? गया bowed his head. How could I not recognize you, Malik? He said humbly. गया ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ मालिक। I hope you are well. सब कुछ ठीक तो है? जैसे हम जब किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं ना, आप ठीक तो हैं, परिवार में सब ठीक तो है, उसी तरीके से गया ने भी पूछ लिया। I am fine, I said. Tell me about yourself. लेखक कहता है, उसने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने बारे में बताओ। I work as a groom, सरकार।
मैं यहाँ पर घोड़ों की रखवाली करता हूँ, गया ने जवाब दिया। एंड मताई, मोहन, दुर्गा, वेयर आर दे? लेखक आगे इंक्वायरी करता है कि मोहन, दुर्गा, मताई, शायद इसके बचपन के खेलने वाले साथ में जिन बच्चों के साथ ये बड़ा हुआ होगा लेखक, ये उनके नाम है। तो उनके बारे में पूछता है, डू यू हैव एनी न्यूज ऑफ देम? उनके बारे में क्या खबर है? आई आस्क्ड। लेखक पूछता है, मताई डाइड, मताई की डेथ हो चुकी है। मोहन एंड दुर्गा आर बोथ पोस्टमैन, मोहन और दुर्गा दोनों पोस्टमैन बन चुके हैं। एंड यू सरकार? अब गया आगे पूछता है, आप क्या हो सरकार? आप कैसे हो सरकार? आई एम एन इंजीनियर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का इंजीनियर हूँ। डू यू स्टिल प्ले गिल्ली डंडा? आई आस्क्ड। लेखक गया से पूछता है, क्या तुम अभी भी गिल्ली डंडा खेलते हो? गया लुक एस्टोनिश्ड, वेयर इज द टाइम मालिक? ही सेड, आई हैव टू अर्न माय लिविंग। गया कहता है, गया को बड़ा आश्चर्य होता है कि लेखक को अभी भी याद है कि वो गिल्ली डंडा खेलते थे। तो वो कहता है कि मालिक टाइम कहाँ है? मेरे को अपना जीवन यापन करना है, मुझे अपनी जीवन चलाने के लिए कमाई करनी है, तो मेरे पास टाइम ही किधर है? कम, आई सेड, टुडे यू एंड आई विल प्ले गिल्ली डंडा। लेखक कहता है गया से कि आओ चलो आज हम दोनों गिल्ली डंडा खेलेंगे। यू बैट, आई विल फील्ड, आई हैवंट फॉरगॉटन आई ओ यू अ टर्न ऑफ बैटिंग। लेखक आगे कहता है कि तुम बैटिंग करो, मैं फील्डिंग करूंगा, मुझे आज भी याद है कि तुम्हारी एक चांस मुझे बैटिंग की देनी है। गया एग्रीड टू प्ले वेरी रिलक्टेंटली, ही वॉज अ लेबरर ऑन डेली वेजेस। गया बहुत हिचकिचाने के बाद, रिलक्टेंटली हिचकिचाने के बाद, तैयार तो हो क्या खेलने के लिए, वो डेली वेज का मजदूर था, दिहाड़ी मजदूर था। आई वॉज अ सीनियर ऑफिसर, और मैं एक सीनियर ऑफिसर था। What did the two of us have in common? हम दोनों के बीच में क्या कॉमन था? I took Gaya back with me to the dark bungalow, and then we both drove in my car to the spot where we were going to play. मैं उसको डाक बंगलो लेके गया और वहां से मैंने अपनी गाड़ी उठाई और हम दोनों उस जगह पे पहुंचे जहां पर हम लोग गिल्ली डंडा खेलने वाले थे। We also took an axe with us. हमने अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी रख ली। Despite my inner excitement, I managed to look very calm. हालांकि मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था इस गेम को लेके, लेकिन मैंने बाहर से ऐसे दिखाया कि मैं बहुत ही शांत हूँ। गया फेस शोड नो साइन ऑफ आइदर ईगरनेस और प्लेजर। हालांकि गया के चेहरे पे न तो कोई उतावलापन दिख रहा था और ना ही कोई खुशी दिख रही थी। Perhaps his mind was too oppressed by the difference in our status. शायद उसके मन में ये बात, वो अपने मन में ये बात को इवैल्यूएट कर रहा था कि हम दोनों के स्टेटस के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। Did you ever think of me all these years? I asked. Be truthful, गया। लेखक गया से पूछता है कि तुमने कभी मेरे बारे में सोचा इतने सालों में? गया, सच्ची सच्ची बताना। How could I presume to think of you, Malik? He said awkwardly. गया जवाब देता है कि मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ कि मैं आपके बारे में सोचूं। But I thought of you quite often, I said a little sadly. लेखक कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बार सोचा, थोड़ा सा दुखी होके कहता है। ठीक है, I still remember that blow you gave me with your डंडा। लेखक आगे कहता है मेरे को आज भी वो याद है जो तुमने मेरे डंडा लगाया था जब मैंने तुम्हारी चांस नहीं दी थी। That was long ago, सरकार। गया कहता है वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है ना? ये नॉर्मल सी टॉक्स हैं। प्लीज डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट। गया लुक्ड वेरी सॉरी। गया बहुत ही ज्यादा सॉरी दिखता है और लेखक से कहता है अब आप मुझे उस बात की याद भी मत दिलाओ। वाह, आई सेड, व्हाई नॉट? दैट मेमोरी रिमेन्स द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ माय चाइल्डहुड। लेखक कहता है अरे वाह, क्यों नहीं याद दिला? वो तो मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत मेमोरीज में से, सबसे अच्छी मेमोरीज में से एक मेमोरी है। We were now about 3 miles away from the town. Everything was quiet and peaceful. The sky was lit by the rays of the evening sun. अब हम 3 मील दूर आ चुके थे शहर से और जगह बिल्कुल शांत थी। आकाश में सूरज की किरणें थी, बाकी बिल्कुल शांति छाई हुई थी।
I rapidly climbed up a tree and cut a branch to make a gilli and the danda. मैं जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मैंने एक ब्रांच काट दी गिल्ली और डंडा बनाने के लिए. Then we began playing. फिर हमने खेलना स्टार्ट किया. I hit the gilli, making it leap up in the air. Gaya tried to catch it, but it fell behind him. मैंने फटाफट गिल्ली डंडा खेलना स्टार्ट किया. मैंने गिल्ली को मारा एक तरफ से और वो जैसे ही हवा में उछली मैंने उसको जोर से मारा और वो जाके गिल्ली जो है वो जाके कहाँ गिरी? गया के पीछे गिरी. He seemed to have lost his old dexterity. वो अपनी हुनर को, पुराने हुनर को शायद भूल चुका था या खो चुका था. No गिल्ली had ever escaped the Gaya when we were children. कोई भी गिल्ली चाहे कैसी भी मारी गई हो गया से नहीं बच सकती थी. I started batting. I was out of practice, but I made up for my lack of skill by cheating at every opportunity. मैंने बैटिंग करना स्टार्ट किया. मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं थी अब, लेकिन क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस नहीं थी तो मैंने हर एक मौके पे चीटिंग की. Gaya watched without saying a word. How accurate his aim used to be in the old days. His gilly had never failed to hit the danda. Now it missed the danda every time. Gaya जो था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था और उसका जो निशाना होता था गया को, जो बचपन की बात याद कर रहा है लेखक कि वो इतना एक्यूरेट होता था, इतना सटीक होता था, लेकिन अब देखो ये गिल्ली से डंडे को मारी, डंडे से गिल्ली को मार ही नहीं पा रहा है और उसने कई बार गिल्ली को मिस कर दिया. After I had been batting for half an hour, the gilly did hit the danda once, but I refused to acknowledge the fact. Surprisingly, Gaya did not argue. हालांकि आधा घंटा खेलने के बाद एक बार गिल्ली उसने मारी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, तुमने गिल्ली को छुआ तक नहीं. और गया जो था उसने कोई मेरे से बहस भी नहीं की. Had we been children, Gaya would have climbed on my back by now and never allowed me to get away with such cheating. अगर हम बच्चे होते तो गया अब तक मेरी पीठ पे on my back यानी मेरी पीठ पे चढ़ के बैठ चुका होता इस तरीके से अगर मैं चीटिंग करता उसके साथ तो. But now it was the easiest thing to make a fool of him. लेकिन अब गया को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान हो गया था. He had forgotten everything. वो सब कुछ भूल चुका था. After a minute, the gilly hit the danda again, and this time as loudly and unmistakably as a pistol shot. थोड़ी देर के बाद, एक मिनट के बाद ही गिल्ली दोबारा से हवा में उछलती है और डंडे से टच होती है और खूब जोर की आवाज भी आती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जब पिस्टल से गोली निकलती है. It hit, Gaya declared joyfully. Gaya जो है खुश होके ये डिक्लेयर करता है, मैंने गिल्ली को मार दिया, मैंने मार दिया. Did it? I said, pretending to look very puzzled. I didn't see it, just hit. मैंने लेखक ने गया से बोला, सच में क्या गिल्ली को तुमने हिट किया है? मैंने तो नहीं देखा. But it made a loud noise. Gaya protested. गया ने प्रोटेस्ट किया, गया ने दोबारा जवाब दिया. कितनी जोर की आवाज आई थी. Perhaps it hit a brick, I said. शायद तुमने डंडे से उसको नहीं मारा और गिल्ली जो है वो किसी ईंट पे जाके गिरी होगी और ये उसी की आवाज थी. Even I was amazed at the extent of my tampering with the truth. मैं अपने झूठ बोलने के हुनर पर भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ उस दिन. कौन आश्चर्यचकित हुआ? लेखक. ठीक है. Both Gaya and I had seen as well as heard the gilly hitting the danda, but he accepted my absurd and unreasonable suggestion about the prick. गिल्ली डंडे से छुई थी और गया ने उसको मारा था, ये मैंने भी देखा था और गया ने भी देखा था, लेकिन गया ने बड़ी आसानी से मेरे फालतू से सजेशन को मान लिया कि शायद गिल्ली जो है ब्रिक पर यानी ईंट पर गिरी थी और इसी का वो नॉइस था. Okay, students, we are going to stop here. Tomorrow we are going to resume this story from here itself. Okay, and if you have any question, please keep in your mind. Tomorrow I'm going to take up your question as well. Right? Okay, then we will meet tomorrow.